Hello students, how are you? Hope you are all fine at home. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our next topic, that is sentence transformation. Sentence transformation. What is sentence transformation? Actually, sentence transformation is a kind of exercise and it depends on the rules of direct and indirect. That is also known as narration and reported speech. We have already read about this topic, means direct indirect we have already discussed. For doing this exercise you have to revise all the rules of direct and indirect. What is this? Actually there are some dialogues, okay, and after then there is a paragraph, and in this paragraph you can see there are three blanks and you have to fill these three blanks on the basis of the dialogues given above. जो डायलॉग्स ऊपर दिए गए हैं उन डायलॉग्स के बेसिस पे आपको ये पैराग्राफ में जो थ्री ब्लैंक्स है ये आपको फिल करने हैं, और इसके साथ ही साथ आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने. यू हैव टू रिवाइज ऑल द रूल्स बिफोर डूइंग दिस सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन direct and indirect. Let us revise in short the rules of direct and indirect. Okay, that is the summary of changes of direct and indirect. As I have told you, there are two part of direct sentence. One is reporting verb and the second is reported speech. ठीक है, तो अगर आपका reporting verb past या past है, प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो चेंजेस हैं वो ये दिए हुए हैं, आपके देख सकते हैं आप. यू कैन सी हियर, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट में इज एम आर है तो आप वॉज वर्ब करेंगे. इफ इट हैज और हैज है तो हैड, और अगर आपका गो है तो वेंट, गो आपका प्रेजेंट है ना तो वेंट V2 लगा देंगे आप. डिड है या फिर आप डिड है तो हैड एंड देन V3. ओके, V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वॉज वर है तो हैड बीन, will है तो would, shall है तो should, can है तो could, may है तो might. In this way you will change your verbs. Okay class, clear? And you will have to read all the rules of direct and indirect. You can means you can revise the rules of direct and indirect which we have discussed already in our previous lectures. And changes of pronoun you can see here. First person according to the subject, second person according to the object. Change to third person is the reported verb has no object. Okay, third person unchanged. This is the change summary. Okay, means I have discussed already the rules of 1 2 3 and sun, if you remind. Okay, and then this is the time, place, expressions and other changes. Now, then, ago, before, today, that day, last night, the previous night, or the night before, next day, the following week, here, there, hither, thither, this, that, thus, so. In this way we have just revised it in short, and please check that video also, video lecture of direct and indirect which we have discussed already. Clear? Now we will do the exercise. See this, the dialogue is, Tommy, how did you spend your vacation? Astha, I visited Kashmir with my parents. Tanmay, sorry, not Tommy. Tanmay, have you been there earlier too? Astha, no, it was my first trip. Now the paragraph is, Tanmay asked Astha vacation. A blank vacation. अब आपको यहाँ पे क्या भरना है? The first dialogue, the very first dialogue. How did you spend your vacation? तो आप कैसे करेंगे? It is interrogative sentence. तो इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते समय ये बताया था कि क्वेश्चन वर्ड ही आपका कनेक्टर होता है. तो हाउ आपका यहाँ पर कनेक्टर है, तो आप यहाँ पर हाउ करेंगे. फिर यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, तो ये यू आपका आस्था जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, शी में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर इसके बाद डिड है, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे तो हैड कर देंगे. हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पेंट लगाएंगे. फिर हर, तो हाउ डिड शी स्पेंट हर वेकेशन आपका दिया हुआ है. दिस इज द आंसर. यू कैन सी हियर, हाउ डिड शी स्पेंट हर. आई थिंक द समरी इज क्लियर टू चेंज. नाउ सेकंड ब्लैंक, आस्था रिप्लाइड दैट बी ब्लैंक. तो यहाँ पे आपको क्या भरना है? विद हर पेरेंट्स. तो विद हर पेरेंट्स आप देख सकते हो यहाँ इस सेकेंड लाइन में विद हर
I visited Kashmir with my parents. Clear है, फिल करना है कहाँ पे, यहाँ पे. आस्था रिप्लाइड दैट. इसके बाद हम कैसे फिल करेंगे? आस्था रिप्लाइड दैट के बाद हम आई को हम यहाँ पर अपने जो है चेंज करके यूज करेंगे. तो चेंज किससे करेंगे? आई फर्स्ट पर्सन है तो आस्था के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. तो आस्था रिप्लाइड दैट शी हो जाएगा. जब आई को हम आस्था के साथ चेंज करेंगे तो शी हो जाएगा. फिर ये विजिटेड क्या शो कर रहा है? पास्ट इंडेफिनिट. तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो हैड विजिटेड हो जाएगा. हैड विजिटेड कश्मीर. क्लियर क्लास? बी ऑप्शन क्लियर हो गया, बी ब्लैंक. एंड आफ्टर दैट यू हैव सी ब्लैंक. आस्था रिप्लाइड इन. तो अब आपका जो ये लास्ट स्टेटमेंट है, नो इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप, जब आपका आंसर नो या येस में हो तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या नेगेटिव में देते हैं. तो आस्था रिप्लाइड इन नेगेटिव. फिर इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे सेइंग दैट कहते हुए, ठीक है ना. इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप, तो इट वॉज हर फर्स्ट ट्रिप. माई किस में कन्वर्ट हो गया? फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपका ये आस्था के साथ चेंज होके ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट होके आ जाएगा. ऑब्जेक्टिव केस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस भी होता है. क्लियर? तो इस तरीके से हम भी चेंज करेंगे. आई थिंक दैट समरी ऑफ चेंज इज क्लियर टू यू. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ दिस इज नेक्स्ट वन. सी हियर. टीचर, व्हाई आर यू लेट? सुमित, आई मिस्ड माई स्कूल बस. टीचर, व्हाई डिडंट यू लीव इन टाइम? Sumit, sorry, I will do so from tomorrow. Now it is your dialogues and we have this paragraph, okay, which we have to fill. Now pay attention here. The teacher asked Sumit a blank. क्या पूछा है सुमित से टीचर ने? टीचर ने पूछा है why are you late. Again we have interrogative sentence. As I have told you, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो वाई, जो WH क्वेश्चन वर्ड है वही कनेक्टर होगा. तो हमने यहाँ पर वाई को एज इट इज रखा है. फिर आर यू लेट. आर यू लेट, जैसा आपको पहले भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये डिस्कस किया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना होता है. ओके, तो यू आर लेट. अब यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन. तो सेकंड पर्सन को हम सुमित ऑब्जेक्ट से चेंज करके किस में बदल देंगे? ही में. आर आपका प्रेजेंट है तो वो पास्ट में हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा? वाई ही वॉज. यू कैन सी द आंसर हियर, वाई ही वॉज. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज सुमित रिप्लाइड दैट बी ब्लैंक. अब ये आपका बी ब्लैंक है, तो बी ब्लैंक में क्या फिलअप करना है हमें? आई मिस्ड माई स्कूल बस. तो सुमित क्या रिप्लाइड कर रहा है? आई मिस्ड माई स्कूल बस. तो जो सुमित है वो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई मिस्ड माई स्कूल बस में से आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो आई ही में बदल जाएगा. मिस्ड आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैड मिस्ड. ठीक है. माई स्कूल बस, तो माई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सुमित के अकॉर्डिंग हिज स्कूल बस में चेंज हो जाएगा. ही के साथ हम हिज ऑब्जेक्ट लगाते हैं. क्लियर? नाउ द थर्ड इज व्हाट इज when the teacher asked him blank. तो क्या है? टीचर ने क्या पूछा था? टीचर, why didn't you leave in time? कि तुमने टाइम पर स्कूल क्यों नहीं, मतलब टाइम से क्यों नहीं आए. तो आप कैसे फिलअप करोगे? Why again we have interrogative. For that we will put our interrogative word as it is. Okay, तो हम क्या फिलअप करेंगे? Why. फिर इसके बाद हमारा जो है डिडंट यू लीव. तो यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो कि आपका चेंज हो जाएगा किसके साथ? चेंज होगा हमारे सब्जेक्ट के साथ. व्हेन द टीचर आस्क्ड, तो फिर हम इसको ही में कन्वर्ट कर देंगे. व्हाई ही. फिर डिड नॉट आपका पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. हैड नॉट. फिर लीव आपका फर्स्ट पर्सन है, इसको हम थर्ड पर्सन में लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे. इन टाइम आपका एज इट इज होगा. तो कैसे हो जाएगा? Why he had not left in time. Clear class? I think the summary of changes is clear to you. Now you will have to do some exercise. You will be given in assignment some exercise like this sentence transformation. You have to change by following the rules of direct indirect. Okay, check that my previous lecture of direct indirect. If you have any kind of problem, then discuss me and contact me. You will be given exercise. Do that. Okay class, thank you. Have a nice day.